Welcome everyone. Today I am with the third part of chapter 7, Tea from Assam. Before starting this, I will take meaning of some hard words. First is vendor. Vendor means seller, बेचने वाला. Exclaim, to cry out, आश्चर्य करना. Ardent, impassioned, अत्यधिक समर्पित. Keener, eager, उत्साही. Paddy means crop of rice, धान. Magnificent, captivating, भव्य. Backdrop, background, पृष्ठभूमि. Dwarf means small, बौना. Sturdy means tough, मजबूत. Billowing means puffing, बाहर निकलते हुए. And stressed means spread, फैले हुए. Author of this story is Arup Kumar Dutt. He is an Indian writer and journalist from Guwahati, Assam. He was born on July 2, 1946. He got his degree of BA and MA from Delhi University. He completed his senior secondary in Cambridge. He has written 16 books for adults and 17 adventure novels for young people. He was awarded with Padma Shri Award. Now the story. This story was about two boys, Pranjul and Razveer. Pranjul belongs to Assam. Assam is his birthplace, but his friend Razveer belongs to Delhi. Both are friends and they both are reading in a school in Delhi. Both the friends have come to Assam to spend their holidays during summer vacation. Now we read the story. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai sir? Give us 2 cups," Pranjul said. तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की, ये दोनों ट्रेन से आसाम की ओर आ रहे हैं. प्रांजल का तो बर्थ प्लेस है, लेकिन राजवीर के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी आसाम में घूमने आने का, क्योंकि वो जानता था कि आसाम पूरी दुनिया भर में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है. तो जब ये लोग ट्रेन पे ही रहते हैं तो वेंडर बेचते हैं ना, आवाज़ लगाते हैं. तो एक वेंडर काफ़ी तेज़ आवाज़ में, बहुत ऊंची आवाज़ में वो आवाज़ लगा रहा था चाय लेने के लिए. इन दोनों ने भी अपने लिए 2 कप चाय ली. दे sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea. सभी लोग उसमें चाय पी रहे थे उस कंपार्टमेंट में, ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में जिसमें लोग बैठे थे. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Phew, exclaimed Pranjul. Tea really is very popular. इस स्टोरी में आप देखेंगे, ध्यान देंगे, you please watch here that between two boys, Pranjul and Razveer expresses his knowledge, more knowledge about tea. Actually, Pranjul, Assam was the birthplace for Pranjul, so he was not taking extra interest. But Razveer was taking extra interest, and so before giving the visit here, he had learned more and more about Assam, and so he was curious to express his knowledge and share his knowledge to Pranjul especially. And what knowledge he would give about Assam, that will be a question for you for the examinations. So please highlight all the important points and then those points which are the informations about Assam in the words of Razveer. Okay, be ready to highlight those special points. प्रांजल, ये राजवीर प्रांजल से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया भर में एक दिन में 80 करोड़ कप्स चाय पी जाती है.
इस पे प्रांजल को आश्चर्य होता है। राजवीर को पता था, प्रांजल को ये बात पता नहीं था। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too, an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि प्रांजल इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि ये उसका बर्थ प्लेस था, लेकिन राजवीर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था। प्रांजल डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने में व्यस्त था, लेकिन राजवीर बाहर के दृश्य देखने में व्यस्त था। वैसे उसे भी डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद था। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रशांत विस्मित होता है कि चाय कितना पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो ट्रेन आगे बढ़ती है। प्रांजल उसी तरह डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ रहा था। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन इस समय वह बाहर के सुंदर दृश्य को, चाय की बागान को आप देखोगे ना तो बहुत सुंदर लगता है, और वो उसे देखने में मस्त था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर and had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. हर तरफ हरियाली ही दिख रही थी। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखा है। वो दिल्ली में रहता था ना, नेचुरली उसे कहाँ से ऐसे सीन देखने को मिलेंगे। उसके बाद देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस. साथ ही धान के खेत भी थे और चाय के बागान भी थे। तो धान का खेत रास्ता दे रहा था चाय की बागान को भी बीच में। कहने का मतलब वो दोनों खेत इसे दिख रहे थे ट्रेन से। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. काफ़ी भव्य दृश्य था ये हरियाली का, और वो ऐसा लग रहा था कि चाय की झाड़ी है, चारों तरफ चाय के बागान का एक समुद्र सा लग रहा था कि एक समुद्र है, समुद्र के समान उसका क्षेत्र फैला हुआ था चाय की बागान में। उस चाय के बागान की पृष्ठभूमि ऐसी लग रही थी, जहाँ तक आंख दृष्टि जा रही थी वहाँ तक केवल टी गार्डन ही दिख रहे थे। ड्वार्फिंग द tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. चाय के छोटे छोटे पौधे छोटे थे मगर मजबूती से खड़े थे। वो धान के पौधों के बीच में ऐसे खड़े थे जैसे लगता था कि छोटी छोटी गुड़िया खड़ी है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of a tall chimney. थोड़ी दूर पर ही चिमनी से धुआं भी निकल रहा था। है a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the highest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. राजवीर बहुत उत्साहित हो रहा था और वह कहता है कि ये तो टी गार्डन है। प्रांजल जिसका जन्म ही वहाँ हुआ था और उसी में पला बढ़ा था, इसलिए वह ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो रहा था। कहता है कि अरे ये टी कंट्री इसको समझो, क्योंकि आसाम के लोगों को टी के प्लांटेशन में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यदि है तो आसाम के लोगों को ही है। यदि आप देखना चाहोगे कि यहाँ के सारे बागान को तो पूरी उम्र भी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी सारे बागान को नहीं कोई देख पाएगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स. तो राजवीर कहता है कि मैंने तो चाय के विषय में बहुत कुछ पढ़ा है और ये कोई भी नहीं कह सकता है कि सही में चाय की खोज
कैसे हुए? हाँ, इससे संबंधित कुछ कहानियाँ हैं। व्हाट लीजेंड्स? प्रांजल पूछता है कैसी कहानियाँ? तो वो बताता है, वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज स्पॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी एक चीनी राजा की है जो कि पानी को हमेशा उबाल कर पीता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. एक बार जब उसका पानी गर्म हो रहा था, लकड़ियों पर गर्म हो रहा था, संजोग से चाय के पौधे की ही लकड़ी जल रही थी, तो और उसी पे पानी गर्म हो रहा था, तो कुछ पत्तियाँ उसमें लगी हुई थी, वो पत्तियाँ पानी में गिर जाती है और वो भी उसके साथ उबल जाती है। उस दिन जब वो राजा उस चाय को पीता है, पानी को पीता है, तो उसे वो पानी काफ़ी टेस्टी लगता है और कहा जाता है कि वो पानी टेस्टी किस कारण से हुआ था? वो ग्रीन टी लीव्स के कारण ही हुआ था। टेल मी एनीदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल काफ़ी उत्साहित हो गया सुनकर वो कहानी और वो कहता है, मुझे दूसरी सुनाओ। वेल, have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. राजवीर बताता है दूसरी कहानी इंडियन है। बोधिधर्मा एक बुद्धिस्ट थे, ठीक है ना, बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें महसूस होता था कि जब वे मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उनकी आँखें पलक ऐसे झपकती है जिस कारण उनको डिस्टर्बेंस होता है, वो उनको नींद सी महसूस होती है। ऐसा नहीं हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपने पलकों को कटवा दिया। 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banish sleep. करीब 3 आईलिड्स गिरे थे और जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ वहाँ एक एक पौधा उत्पन्न हो गया। 10 टी प्लांट्स उत्पन्न हो गया। उन पत्तियों को जब पानी में डालकर उबाला गया तो उससे उबालकर पीने से नींद गायब हो जाती थी। आगे राजवीर फिर और भी जानकारी देता है, कहता है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. राजवीर फिर और भी जानकारी देते हुए कहता है कि सबसे पहले चाय चीन में ही पी गई थी, करीब 2700 BC में। इनफैक्ट वास्तव में ये चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। इसका प्रमाण ये भी है कि च से ही चीनी होती है, च से चीन होता है और च से ही चाय भी है। यूरोप में यह 16th सेंचुरी में आई और उस समय इसको एक ड्रिंक से ज़्यादा मेडिसिन के रूप में यूरोप में 16th सेंचुरी में चाय लिया जाता था। द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. मरियानी जंक्शन पे स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकती है, ये अपना सामान लेकर भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। प्रांजोल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम, वहाँ प्रांजोल के पेरेंट्स भी थे। Soon they were driving towards Dekiabari, the tea garden managed by Pranjol's father. अब वे लोग कार में बैठ के प्रांजोल के पेरेंट्स के साथ देखियाबारी की ओर जाते हैं। देखियाबारी एक टी गार्डन है जो कि प्रांजोल के फादर के द्वारा मैनेज किया जाता है, वो वहाँ के मैनेजर हैं। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle breeze and entered देखियाबारी टी एस्टेट। 1 घंटे के बाद ही कार जो है एक मोड़ लेता है और मोड़ लेते हुए मेन रोड पे आ जाता है। मेन रोड पे आने के बाद पशुओं के लिए एक ब्रिज बना होता है, उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए वे लोग देखियाबारी टी एस्टेट में इंटर कर जाते हैं। वहाँ वो क्या देखते हैं, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। दोनों ही साइड
वो रास्ता पथरीला रास्ता था, पत्थर का बना हुआ। उसके दोनों ओर कई एकड़ जमीन क्षेत्र में चाय के बागान थे और सभी चाय के जो पौधे थे वो इस समान ऊंचाई में कटे हुए थे। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. जो टी प्लकर्स होते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ने वाले, उनकी पीठ पे बांस की बनी हुई बास्केट होती है, वो एप्रॉन पहने रहते हैं, वो भी दिख रहे थे। और स्प्राउटेड लीव्स, तुरंत जो पौधा पत्तियां जो फूटती हैं उन पत्तियों को वे लोग चुन रहे थे। प्लकिंग ऑफ टी को आप इस चित्र में देख सकते हैं। प्रांजोस फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के पिता कार को थोड़ी धीमी कर देते हैं क्योंकि सामने से एक ट्रक आ रहा था जिस पर चाय की पत्तियां भरी हुई थीं। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and here's the best tea. अब राजवीर फिर अपनी एक जानकारी को वहाँ देते हुए मिस्टर बरुआ प्रांजोल के पिता से कहता है कि लगता है ये चाय पत्ती की कटाई का ये दूसरा समय है जो कि मई से जुलाई तक चलता है और इस समय चाय की पत्तियों का बेहतरीन उत्पादन होता है। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. प्रांजोल के पिता को आश्चर्य होता है, कहते हैं कि लगता है तुमने पूरा होमवर्क चाय पत्ती पे अपना किया है यहाँ आने से पहले। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन इसका राजवीर की जिज्ञासा अभी शांत नहीं होती है। वो कहता है कि नहीं, मैं आसाम में रहकर और भी जानना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स, you will frame short questions within the chapter and do question number 1 and 2 of this chapter. Thanks a lot for watching the video.